عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ 12ویں جماعت علم معاشیات کا ہمارا چیپٹر نمبر 5 بازار کی مختلف شکلوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ہم مکمل مسابقتی بازار کسے کہتے ہیں اور مکمل مسابقتی بازار کے اندر قیمت کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے، بازار کی قسمیں، مقام کی نوعیت سے بازار کی قسمیں، اس کے علاوہ مسابقت کی نوعیت سے بازار کی قسمیں، اور مزید کہنا چاہیے مسابقت کی بنیاد پر بازار کی قسمیں اور مقام کی بنیاد پر بازار کی قسمیں، وقت کی بنیاد پر بازار کی قسمیں اور بازار کسے کہتے ہیں، ہم ان تمام نکات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے مونوپولی، جس کو اجارہ دارانہ بازار کہا جاتا ہے، یہ مسابقت کی بنیاد پر بازار کی یہ دوسری قسم ہے جسے ہم اجارہ دارانہ بازار کہتے ہیں، مونوپولی۔ مونوپولی مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مونو سے مراد ایک، پولی سے مراد سیلر ہے، یعنی واحد فروشندہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو مونوپولی مارکیٹ بھی ایک بازار کی کیفیت ہے جس میں واحد فروشندہ ہوتا ہے، نزدیکی متبادل کا فقدان ہوتا ہے، یا نزدیکی متبادل کلوز سبسٹیٹیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کلوز سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا نزدیکی متبادل کی کمی ہوتی ہے۔ فرموں کی آزادانہ شمولیت کی اجازت نہیں ہوتی، اس میں شمولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ بازاری رسد پر فروشندے کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمیں جو ہوتی ہے قیمت ساز ہوتی ہے، مزید متفرق قیمت ہوتی ہے، فرم و صنعت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو بازار کی اس کیفیت کو ہم اجارہ دارانہ بازار کہتے ہیں۔ اجارہ دارانہ بازار سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اجارہ دارانہ بازار کے اندر ایک فروشندہ ہوتا ہے، اور ایک فروشندہ ہونے کی وجہ سے، ایک سیلر ہونے کی وجہ سے اور بے شمار خریدار ہونے کی وجہ سے سیلر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، یعنی کوئی دوسرا سیلر وہاں پر موجود نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی اشیاء اور خدمات کی پیداوار کوئی دوسری فرم نہیں کرتی، تو ایک واحد سیلر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کی اجارہ داری ہوتی ہے، وہ جب چاہے رسد پر جس طرح سے چاہے اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قیمتوں میں اضافے کے لیے رسد میں کمی و بیشی کرتا ہے، مزید اور بہت سارے کو اپنی شے کی قیمت خود متعین کرتا ہے۔ بازاری رسد اور بازاری مانگ سے اس شے کی قیمت متعین نہیں ہوتی، بلکہ فرم یا فروشندہ خود اس قیمت کو متعین کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، مونو سے مراد ایک، پولی سے مراد سیلر۔ مونوپولی یعنی ایک واحد فروشندہ، ایک واحد فروخت کرنے والا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک واحد فروخت کرنے والا کہہ سکتے ہیں۔ تو مونوپولی مارکیٹ بھی بازار کی ایک کیفیت ہے۔ اس کا بازار کی کس طرح کی کیفیت ہے، جس میں واحد فروشندہ ہوتا ہے، یعنی بیچنے والا صرف ایک ہوتا ہے، بے شمار خریدار ہوتے ہیں، اور نزدیکی متبادل کا فقدان ہوتا ہے، یعنی کوئی کلوز سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا بازار میں اس شے کا۔ دوسری فرموں کی شمولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی فرم جو ہے مسابقت نہیں کر سکتی، مقابلہ آرائی نہیں ہوتی اس بازار کے اندر۔ بازاری رسد پر فرم کا یا فروشندے کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرم جو ہے قیمت ساز ہوتی ہے، متفرق قیمت یعنی مختلف بازاروں سے مختلف قیمت وصول کی جاتی ہے، مختلف مقام سے مختلف قیمت، مختلف صارفین سے مختلف قیمت وصول کی جاتی ہے، اور فرم اور صنعت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو بازار کی اس کیفیت کو اجارہ دارانہ بازار کہتے ہیں۔ اجارہ دارانہ بازار میں ایک واحد فروشندہ ہوتا ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس طرح سے رسد کرتا ہے، اشیاء و خدمات کی بازار میں رسد کرتا ہے۔ کبھی وہ مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے رسد کو روک لیتا ہے، بازار میں شے کی مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مانگ زیادہ ہو جاتی ہے، رسد کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمت پر دباؤ اوپر کی جانب بنتا ہے، اور اس شے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب شے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو تاجر اس شے کی رسد کر دیتا ہے۔ کبھی اس طرح سے کم قیمت پر قیمت میں کمی کر کے زیادہ فروخت کر کے زیادہ منافع کمانا مقصد ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک رسد زیادہ کی جاتی ہے، اور مانگ اور رسد کے درمیان جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، قیمت پر
दबाव नीचे की जानिब बनता है तो कम कीमत पर ज्यादा अशिया और खिदमत को फरोख्त करता है, यानी ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो अजारा दाराना बाजार के अंदर आजिर जिस तरह से चाहे उस तरह से मुनाफा कमाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि अजारा दाराना बाजार में आजिर जो होता है बाजारी रसद पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। आजिर जो है कीमत साज होता है, यानी शय की कीमत का तयन खुद करता है। मुख्तलिफ सारिफीन, मुख्तलिफ मकाम, मुख्तलिफ बाजारों से वो एक ही शय की मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है। इसलिए कहा जाता है कि अजारा दाराना बाजार एक आजिर के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, हम सिंपली पॉइंट पर आएंगे कि अजारा दाराना बाजार किसे कहा जाता है। अजारा दाराना बाजार की वो कैफियत जिसमें वाहिद फरोशंदा होता है, बेशुमार खरीदार होते हैं, नजदीकी मुतबादिल की कमी होती है, शमूलियत में रुकावट होती है, कानूनी और दीगर रुकावटें होती है, बाजारी रसद पर आजिर का मुकम्मल कंट्रोल होता है। आजिर जो होता है, आजिर या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं फरोशंदा जो होता है कीमत साज होता है और मुतफर्रिक कीमत वसूल करता है। फर्म और सनत में कोई फर्क नहीं होता। बाजार की इस कैफियत को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं, हम अजारा दाराना बाजार कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, तो सिंपली अजारा दाराना बाजार की सबसे पहली खूबी जो है खुसूसियात है। खुसूसियत में सबसे पहली खुसूसियत जो है वाहिद फरोशंदा होता है, सिंगल सेलर होता है, यानी एक सेलर होता है, एक फरोशंदा होता है। एक फरोशंदा होता है, अशिया खिदमत को बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक होता है, कोई दूसरा उन अशिया खिदमत की पैदावार नहीं करता, उन अशिया खिदमत को कोई दूसरा फर्द बाजार में रसद नहीं करता। तो अजीज तुलबा और तालिबात, अजीज तुलबा और तालिबात, अजारा दाराना बाजार के अंदर वाहिद फरोशंदा होता है। वो वाहिद फरोशंदा होता है, वो वाहिद पैदाकार होता है, वाहिद प्रोड्यूसर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है और मुसाबिकत बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर। मुसाबिकत किसी किस्म की मुकाबला आराई नहीं होती, लेकिन खरीदारों की कसरत होती है और खरीदारों की कसरत होने की वजह से, यानी बेशुमार खरीदार होने की वजह से आजिर क्या करता है, आजिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है, आजिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सिंपल एग्जांपल से लेंगे कि कोई शय है जिसकी पैदावार सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ और खरीदने वाले बेशुमार हैं। अगर मेरी तैयारशुदा अशिया और खिदमत को ए नहीं खरीदता, बी नहीं खरीदता, सी नहीं खरीदता, लेकिन ऐसे बेशुमार अनगिनत लोग हैं जो मेरी अशिया और खिदमत को खरीदने के लिए रजामंद है, तो अशिया और खिदमत वाहिद फरोशंदा होने की वजह से और बेशुमार खरीदार होने की वजह से, यानी खरीदारों की कसरत होने की वजह से, ज्यादा खरीदारों की कसरत होने की वजह से क्या होता है, किसी किस्म की मुकाबला आराई नहीं होती। वो जो कीमत मुतय्यन करता है उस कीमत पर खरीदार खरीदते हैं, खरीदने पर रजामंद होते हैं, खरीदने पर रजामंद होते हैं। ए नहीं खरीदेगा, बी नहीं खरीदेगा, सी नहीं खरीदेगा, डी नहीं खरीदेगा, तो दीगर ई एफ जी एच और दीगर खरीदार हैं जो अशिया और खिदमत को खरीदने के लिए रजामंद है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वाहिद फरोशंदा होता है, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की ये एक अहम खूबी या खुसूसियत है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस पॉइंट को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में एक फरोशंदा होता है, एक फरोशंदा यानी फरोख्त करने वाला एक फरोशंदा होता है, वही पैदाकार होता है, वही शय की उस शय और खिदमत की पैदावार करता है, कोई दूसरा उस शय और उस खिदमत की पैदावार नहीं करता। तो वाहिद क्या होता है, वाहिद फरोशंदा होता है और बाजार के अंदर उसका मुकाबला करने के कोई काबिल नहीं होता, कोई दूसरा किसी किस्म की मुकाबला आराई नहीं होती, किसी किस्म की मुसाबिकत नहीं होती, कोई दूसरी फर्म ऐसी नहीं होती जो उससे मुसाबिकत कर सके, तो कोई फर्म जो है उससे मुसाबिकत करने वाली नहीं होती। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में वाहिद फरोशंदा होता है और खरीदारों की कसरत होती है और मुसाबिकत नहीं होती, तो इसकी वजह ये एक अहम खूबी है यहाँ पर कि मुकम्मल मुसाबिकती
मुसाबकती बाजार में वाहिद फरोशंदा होता है, खरीदारों की कसरत होती है यानी बेशुमार खरीदार होते हैं, वाहिद फरोशंदा ही पैदाकार होता है यानी अशिया खिदमात की पैदावार करने वाला होता है, या कोई दूसरी फर्म उन अशिया खिदमात की पैदावार नहीं करती बल्कि सिर्फ वो अकेली वाहिद फर्म उन अशिया खिदमात की पैदावार करती है, तो वाहिद फरोशंदा होता है। मुकाबला आराई नहीं होती, मुसाबकत नहीं होती, किसी किस्म की मुसाबकत नहीं होती और खरीदारों की कसरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मुकम्मल कहा गया है कि अजारा बाजार के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, वाहिद फरोशंदा होता है। ये इसकी एक अहम खूबी है, एक अहम खुसूसियत है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि मुकम्मल अजारा मुसाबकती बाजार के अंदर क्या होता है, नजदीकी मुतबादिल नहीं होता। हम देखते हैं कि बाजार के अंदर बहुत सारी अशिया और खिदमत ऐसी होती है जिनका करीबी मुतबादिल मौजूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको अगर स्प्राइट नहीं मिलता है तो आप 7 अप लेंगे क्योंकि स्प्राइट का मुतबादिल 7 अप है। आपको कोई टैबलेट नहीं मिलती तो आप उसका सब्स्टिट्यूट लोगे। आपको टूथपेस्ट, कोई किसी कंपनी का अगर टूथपेस्ट आपको दस्तयाब नहीं होता तो आप दूसरी कंपनी का टूथपेस्ट लोगे। तो अजीज तुलबात बाजार में अशिया और खिदमत के बहुत सारे मुतबादिल होते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि अजारा मुसाबकती बाजार के अंदर मोनोपोली मार्केट के अंदर मुतबादिल का फुकदान होता है, यानी कोई दूसरी फर्म नहीं होती जो उन अशिया और खिदमत की पैदावार करती है। इसलिए खरीदारों के पास, कहने का मतलब यह खरीदारों के पास इंतखाब का मौका नहीं होता, वो लामहला उस फर्म की पैदावार को खरीदने पर मजबूर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अजारा बाजार के अंदर नजदीकी मुतबादिल का फुकदान होता है। इसको नो क्लोज सब्स्टिट्यूट जिसको हम कह सकते हैं कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फर्म एक ऐसी अशिया खिदमत की पैदावार करती है जिसकी जो उस अशिया खिदमत को कोई दूसरी फर्म पैदा नहीं कर सकती और कोई दूसरा मुतबादिल उसका बाजार में मौजूद नहीं होता और खरीदारों के पास कोई दूसरा इंतखाब का मौका नहीं होता, या फिर बगैर अशिया खरीदे ही रुखसत हो जाते हैं। इसकी पैदावार में मुतकातिल, कहने का मतलब यहाँ पर है कि मुतकातिल इस पैदावार में जो लचक पाई जाती है वो कहना चाहिए कि इसको हम कह सकते हैं मुतकातिल क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कहते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुतकातिल लचक इसकी सिफर होती है। यहाँ पर मुतकातिल लचक सिफर होती है। तो इस दूसरे पॉइंट को भी हम बआसानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपली देखेंगे किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि अजारा बाजार के अंदर नजदीकी मुतबादिल का फुकदान होता है, यानी नजदीकी मुतबादिल जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फर्म एक ऐसी अशिया और खिदमत की पैदावार करती है जो कोई दूसरी फर्म उस अशिया और खिदमत की पैदावार नहीं करती। कोई दूसरी फर्म जो उन अशिया और खिदमत की पैदावार नहीं करती, तो फर्म खरीदार बेशुमार होते हैं और खरीदारों के पास कोई दूसरा इंतखाब का मौका नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई शय आप खरीदना चाहते हो, किसी चीज़ को आप खरीदना चाहते हो, तो आप मार्केट में जाकर उसका दाम मालूम करोगे, यानी कीमत मालूम करोगे। कीमत मालूम करने के बाद आप उस पर मुतमईन नहीं होते, आप दूसरी दुकान पर जाकर उसकी कीमत मालूम करते हो, या फिर दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो जो कम कीमत पर दस्तयाब हो। तो आपकी कुव्वत खरीद के हिसाब से आप उसका सब्स्टिट्यूट खरीद लेते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आजिर फर्म ऐसी अशिया खिदमत की पैदावार करती है जिसका कोई करीबी मुतबादिल नहीं होता, यानी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और जो कहने का मतलब है, खरीदार अगर खरीदना चाहे तो मुतय्यन कीमत पर, यानी मुकर्रर कीमत पर अशिया खिदमत को खरीद सकता है। अगर खरीदना ना चाहे तो वो बगैर खरीदे रुखसत हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी मांग वो अगर नहीं खरीदता है, अगर खरीदार नहीं खरीदता है तो उसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी कीमत मुतासिर नहीं होती, शय की कीमत मुतासिर नहीं होती या शय की कीमत कम नहीं होती। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अजीज तुलबा और तालिबात,
मुकम्मल अजारदाराना मुसाबिकती, अजारदाराना बाजार के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर एक आजिर होता है, उसकी अजारदारी मार्केट पर कायम होती है, वो अजारदारी कायम होती है और वो ऐसी अशिया खिदमात की पैदावार करता है जिसका कोई करीबी मुतबादिल नहीं होता, जिसके हम कह सकते हैं बेशुमार खरीदार होते हैं इस बाजार के अंदर, खरीदारों के पास इंतखाब का मौका नहीं होता, इंतखाब का मौका नहीं होता। तो खरीदार जो है अगर चाहे तो मुकर्ररा कीमत पर अशिया खिदमात को खरीद सकता है, अगर ना कर उसकी कुव्वत खरीद कम है तो वो बगैर खरीदे भी रुखसत हो सकता है। तो यहाँ पर जो मांग की लचक पाई जाती है, मांग की मुताकाते सिफर लचक पाई जाती है, सिफर लचक पाई जाती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस पॉइंट को हम सिंपली इस तरह से बयान कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है शमूलियत, जिसको हम कहते हैं शामिल होने, शमूलियत में रुकावट। बाजार में नए आजिरीन यानी नए आजिरीन, नई फर्में, जिसको हम कहेंगे कि बाजार में नई फर्में, नए आजिरीन जो होते हैं उनके दाखिल होने पर कानूनी रुकावट होती है, या कानूनी या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं टेक्निकी रुकावटें होती है। और इस तरह से जो मुकाबला आराई करने वालों को बाजार में शामिल नहीं होने दिया जाता, या बाजार में शामिल होने की इजाजत नहीं होती। तो सिंपली इस पॉइंट को भी, जैसे हम मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर कोई भी फर्म जो है शमूलियत की आज़ादी थी, इखराज की आज़ादी थी, कोई भी फर्म जो उसके अंदर शामिल हो सकती थी, कोई भी फर्म चाहे तो मुसाबिकत से निकल सकती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अजारदाराना बाजार के अंदर कोई नई फर्म जो है शामिल नहीं हो सकती, कोई नई फर्म कंपटीशन में नहीं आ सकती, कोई नई फर्म मुसाबिकत में नहीं आ सकती, कोई नई फर्म जो है उन अशिया खिदमात की पैदावार करके उस फर्म से मुसाबिकत नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर कानूनी और टेक्निकी, जिसको हम कहते हैं टेक्निकी रुकावटें होती है। किसी भी फर्म को आज़ादाना शमूलियत की आज़ादी नहीं होती, या दूसरे अल्फाज किसी भी फर्म को मुकाबला आराई में शामिल होने की इजाजत नहीं होती किसी भी फर्म को। तो जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपको एक कांसेप्ट क्लियर नहीं होता तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे डिपार्टमेंट जो है, रेलवे का शोबा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई दूसरी फर्म जो है रेलवे नहीं चला सकती, एक रुकावट होती है। कहने का मतलब यह है कि रेलवे पर हुकूमत की इजारादारी है, कहने का हुकूमत एक वाहिद फर्म है जो रेलवेज की सहूलत हमें फराहम करती है। कोई दूसरी फर्म जो है रेलवे की सहूलत हमें फराहम नहीं कर सकती, रेल के जरिए सफर करने की सहूलत कोई दूसरी फर्म हमें फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि रेलवे पर हुकूमत की इजारादारी है। हुकूमत एक वाहिद फर्म है, मिसाल के तौर पर हुकूमत एक वाहिद फर्म है जो रेलवे की सहूलत हमें फराहम करती है, रेलवे की खिदमत हमें फराहम करती है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, अब ये पॉइंट बजाय, क्योंकि कोई दूसरी हुकूमत पाबंदी लगाती है कि कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी फर्म जो हिंदुस्तान के अंदर रेलवे नहीं चला सकती जब तक हुकूमत ना चाहे। तो अजीज तुलबा और तालिबात, शमूलियत में रुकावट से मुराद कोई भी फर्म जो है मुकाबले में शामिल नहीं हो सकती, और कोई भी फर्म जो है आजिर की या अजारदाराना बाजार के अंदर आजिर की के साथ मुकाबला आराई नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कानूनी और टेक्निकी रुकावटें होती है। कोई किसी भी फर्म को शामिल होने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए ये एक अहम खूबी है कि अजारदाराना बाजार के अंदर शमूलियत में रुकावट होती है, यानी आज़ादाना तौर पर कोई भी फर्म के शामिल होने की आज़ादी नहीं होती इसके अंदर। तो तीसरा जो है यहाँ पर नंबर 4 तो जो हमारा है कि बाजारी रसद पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। अजारदाराना बाजार के अंदर एक वाहिद फरोशंदा होता है जो अशिया और खिदमात की पैदावार करता है, प्रोड्यूस करता है। कोई दूसरी फर्म या कोई दूसरा आजिर जो है उन अशिया और खिदमात की पैदावार नहीं करता। तो यहाँ पर सिंपली बाजारी रसद पर आजिर का मुकम्मल कंट्रोल होता है। बाजारी रसद पर आजिर का मुकम्मल कंट्रोल से मुराद यहाँ पर यह है कि आजिर जितनी चाहे उतनी रसद करता है और जितनी
चाहे जितनी मिकदार चाहे उतनी रसद करता है, कभी ज्यादा रसद कर सकता है, कभी कम रसद कर सकता है। तो यहाँ पर कोई उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होता, बल्कि आजिर जो है बाजारी रसद पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। वो जितनी चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक कभी रसद कम करके बाजार के अंदर उस शय की मसनूई किल्लत पैदा कर देता है, कभी रसद ज्यादा करके बाजार में उस शय की दस्तयाबी को आसान बना देता है। तो ये आजिर के ऊपर डिपेंड होता है। तो मुकम्मल अजारा दाराना बाजार के अंदर बाजारी रसद पर आजिर का मुकम्मल कंट्रोल होता है। ये अजारा दाराना बाजार की ये भी एक अहम खूबी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अजारा दाराना बाजार के अंदर आजिर जो होता है कीमत साज होता है। कीमत साज होता है यानी प्राइस मेकर होता है, क्योंकि आजिर जो होता है वाहिद फरोशंदा होता है, एक बेचने वाला एक होता है, और बेचने वाला एक होने की वजह से क्या होता है, कोई दूसरी फर्म उससे मुकाबला अरानी नहीं करती, इसलिए अपनी पैदावार की कीमत वो खुद मुतय्यन करता है। वो खुद मुतय्यन करता है, अपनी पैदावार की कीमत वो खुद मुतय्यन करता है, और जो खरीदार हैं वो खरीदार उसकी कीमत को कबूल करने वाले होते हैं। यहाँ पर जैसे मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर फर्में जो है कीमत कबूल करने वाली होती थी, फर्मों को कीमत मुतय्यन कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करना पड़ता था। लेकिन अजारा दाराना बाजार के अंदर फर्म जो होती है, एक ही फर्म होती है, वो कीमत साज होती है। कीमत साज होती है यानी शय की अशिया और खिदमात की कीमत वो खुद मुतय्यन करती है। शय की कीमत या पैदावार की कीमत वो खुद मुतय्यन करता है आजिर, कोई दूसरा यानी बाजारी रसद और बाजारी जिस तरह से कीमत जो मुतवाज़िन कीमत का तयन होता है, या किसी भी शय की कीमत का तयन उसकी बाजारी रसद और बाजारी मांग से होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, बल्कि आजिर क्या करता है, कीमत साज होता है। वो कीमत अपनी पैदावार की कीमत को मुतय्यन करता है, उसकी बाजारी कीमत को मुतय्यन करता है। क्योंकि यहाँ पर बाजारी कीमत को मुतय्यन करता है क्योंकि एक आजिर का मकसद बेशतरीन मुनाफा होता है, इसलिए वो ज्यादा कीमत मुतय्यन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, यहाँ पर ये एक अहम खूबी है कि अजारा दाराना बाजार के अंदर आजिर जो होता है, फर्म जो होती है वो कीमत साज होती है, या आजिर जो होता है कीमत साज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मुतफर्रिक कीमत। मुतफर्रिक कीमत सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मुतफर्रिक कीमत अजारा दाराना बाजार में आजिर अपनी पैदावार का अजारादार होता है, यानी अपनी पैदावार का अजारादार होता है। वो मुख्तलिफ सारिफीन से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, मुख्तलिफ सारिफीन से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, मुख्तलिफ बाजारों से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है। क्योंकि कोई दूसरी फर्म मुकाबला आराई करने वाली नहीं होती, इसलिए वो जो कीमत मुतय्यन करता है उस कीमत पर लोग खरीदने पर मजबूर होते हैं, और कोई दूसरी फर्म, कोई दूसरा मुतबादिल बाजार में मौजूद नहीं होता। तो फर्म मुतफर्रिक कीमत से मुराद यहाँ पर यह है कि अजारा दाराना बाजार के अंदर आजिर जो है मुतफर्रिक कीमत, कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, मुख्तलिफ सारिफीन से, मुख्तलिफ खरीदारों से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, इसके अलावा मुख्तलिफ बाजारों से मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, मुख्तलिफ बाजारों से भी मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है। अब मुख्तलिफ बाजारों से यानी कहने का मतलब महाड़ के बाजार में वो मुख्तलिफ कीमत पर बेचेगा, मानगांव के बाजार में वो किसी और कीमत पर बेचेगा, पेन के बाजार में वो किसी और कीमत पर बेचेगा। तो कहने का मतलब है कि खरीदारों के पास कोई इंतखाब का मौका नहीं होता, कोई दूसरा उस शय की पैदावार करने वाला नहीं होता, वही वाहिद आजिर होता है जो शय की पैदावार करता है, वही वाहिद फर्म होती है जो शय की पैदावार करती है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, मुतफर्रिक कीमत जो है यानी मुख्तलिफ कीमत वसूल करना, मुख्तलिफ सारिफीन से मुख्तलिफ कीमत वसूल करना, मुख्तलिफ बाजारों से एक ही शय की मुख्तलिफ कीमत वसूल करना, ये अजारा दाराना बाजार की एक अहम खुसूसियत है, एक अहम खूबी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नंबर 7 है, फर्म और सनत में कोई फर्क नहीं होता। जैसे फर्मों का हुजूम जो होता है सनत कहलाता है। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्म किसे कहते हैं और सनत किसे कहते हैं। फर्म जो है पैदावार की यूनिट को, इकाई को हम फर्म कहते हैं, पैदावार की इकाई को हम फर्म कहते हैं। लेकिन वैसी बेशुमार फर्में होती हैं जो अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं,
तो फर्मों का एक हुजूम होता है, फर्मों का एक हुजूम होता है, और इन तमाम के मजमूए को, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, सनत कहते हैं। लेकिन अजारा दाराना बाजार में एक ही फर्म होती है, वही सनत होती है, वही फर्म होती है। तो सनत और फर्म के दरमियान किसी किस्म का फर्क नहीं होता। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जैसे सनत, अब ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता तो फर्म जो होती है पैदावार की एक यूनिट होती है। जैसे हम मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या हुआ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ टाटा नहीं आएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ टाटा कंपनी नहीं आएगी, बल्कि ऑटोमोबाइल जब इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल, टाटा जो है एक फर्म है, एक यूनिट है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज है वो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगे, क्योंकि वो सब एक फर्म है। तो इस तरह से फर्मों का हुजूम होता है, यानी बेशुमार बहुत सारी फर्में होती है, तो फर्में होती है जो उस अशय और उन अशिया और खिदमात की पैदावार करती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज है, तो जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज है ये फर्म है, लेकिन तमाम ट्रैवल एजेंसीज को अगर मिलाकर हम कहें तो ये एक इंडस्ट्री है, जिसको हम ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री कहते हैं, सयाह यानी कहने का मतलब। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री, अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी फर्में हैं, बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत हर प्रोड्यूसर जो है मुख्तलिफ तरह की फिल्में बनाते हैं, वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो एक प्रोड्यूसर जो है एक फर्म, प्रोडक्शन जो होता है एक फर्म होता है। तो ऐसे बेशुमार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन है, त्रिमूर्ति प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारी फर्में हैं, और इन तमाम फर्मों को मिला के हम क्या कहते हैं, हम इस तमाम फर्मों को मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। यानी प्रोड्यूस करने वाली फर्में जो होती है पैदावारी इकाइयों के मजमूए को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। तो अजारा दाराना बाजार के अंदर फर्म और इंडस्ट्री के दरमियान कोई फर्क नहीं होता। फर्म ही इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्री ही फर्म होती है, क्योंकि एक ही फर्म होती है जो अशिया और खिदमात की पैदावार करती है, और कोई दूसरी फर्म का वजूद नहीं होता, कोई दूसरी फर्म वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से अजारा दाराना बाजार के अंदर फर्म और इंडस्ट्री जो होती है, कहने का मतलब यह है कि फर्म और इंडस्ट्री सेम होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो फर्म से मुराद पैदावार की एक इकाई को हम फर्म कहते हैं, लेकिन पैदावार की मजमूई इकाइयाँ जो होती है उन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे एक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज है। इसी तरह से टूर एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री है। मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बेशुमार ट्रैवल एजेंसीज हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फर्म और सनत में कोई फर्क नहीं होता, फर्म ही सनत कहलाती है और सनत फर्म कहलाती है, क्योंकि एक ही फर्म होती है जो उस शय की पैदावार करती है, उस शय की पैदावार करती है या उस शय को प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि अजारा दाराना बाजार में फर्म और सनत के दरमियान कोई फर्क नहीं होता। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अजारा दाराना बाजार क्या है, अजारा दाराना बाजार की खुसूसियात क्या है, इनको हम वाज़े कर सकते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, अब देखेंगे अजारादारी की किस्में कौन कौन सी है। अजारादारी की बहुत सारी किस्में हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अजारादारी की किस्मों में सबसे पहला जो है यहाँ पर अजारादारी की किस्में जो है सादा अजारादारी या निजी अजारादारी ले लेंगे आप, जिसको हम प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं। प्राइवेट
मोनोपोली कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, निजी अजारादारी, निजी अजारादारी ये पहली किस्म। निजी अजारादारी से मुराद, निजी से मुराद जाती, जिसको हम कहते हैं जाती कहते हैं हम इसको, निजी जिसको हम कहेंगे जब किसी फर्म को एक फर्म वाहिद या निजी फर्म जो है कंट्रोल करती है, या निजी अफराद, निजी अदारा कंट्रोल करता है। जब किसी फर्म को एक फर्द वाहिद जिसको हम कहेंगे एक फर्द या फिर निजी अदारा जो है कंट्रोल करता है, तो उस अजारादारी को क्या कहा जाता है? उस अजारादारी को निजी अजारादारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप देख लेंगे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रतन टाटा एक वाहिद फर्द है जो उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, टाटा इंडस्ट्रीज को। तो कहने का मतलब ये है जब एक फर्द वाहिद के जरिए या एक निजी अदारे के जरिए किसी फर्म को कंट्रोल किया जाता है, तो उसे निजी अजारादारी कहते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा ले सकते हैं आवामी अजारादारी, जिसको पब्लिक मोनोपोली भी कह सकते हैं। अवामी अजारादारी, जब किसी पैदावार की मिल्कियत, हक और चलाने, मिल्कियत हक और चलाने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत को, जब कहने का मतलब है जब किसी पैदावार की मिल्कियत, हक और चलाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको पब्लिक मोनोपोली कहा जाता है, आवामी अजारादारी कहा जाता है, आवामी अजारादारी कहा जाता है। आमतौर से आवामी फलाह बहबूद को हुकूमत कौमिया लेती है। आवामी फलाह बहबूद को मुमकिन बनाने के लिए बहुत सारे शोबों को क्या करती है? हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लेती है और हुकूमत उसको चलाने का इख्तियार रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे पर हुकूमत की अजारादारी है, हिंदुस्तानी रेलवे इसकी बेहतर एग्जाम्पल है। तो सिंपली इसको भी डिफाइन कर सकते हो, आवामी अजारादारी, पब्लिक मोनोपोली। जब किसी फर्म या पैदावार की मिल्कियत, हक और चलाने का इख्तियार हुकूमत को हासिल होता है, यानी हुकूमत को, गवर्नमेंट को हासिल होता है, तो क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक मोनोपोली कहा जाता है, आवामी अजारादारी कहा जाता है। तो ये आवामी अजारादारी की बेहतर एग्जाम्पल हिंदुस्तानी रेलवे है। तीसरा ले लेंगे हम कानूनी अजारादारी। जाहिर सी बात है कानूनी अजारादारी से मुराद क्या है कि ये अजारादारी कानूनी तरीके से हासिल की जाती है। जैसे ट्रेडमार्क का है, पेटेंट है, हर कंपनी का पेटेंट होता है, तिजारती निशान होता है हर कंपनी का। तो इसके जरिए कॉपीराइट का हक होता है कि कोई दूसरा उसकी कॉपीराइट, उसको कॉपी नहीं कर सकता, उन अशिया खिदमात को कॉपी नहीं कर सकता। तो कानूनी अजारादारी होता है। कानूनी अजारादारी यानी नक्ल पर पाबंदी होती है, नक्ल पर पाबंदी होती है। तो ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है, मखसूस पैदावार को रजिस्टर्ड करता है, और ये रजिस्टर्ड करने की वजह से, रजिस्टर करने की वजह से क्या होता है? दूसरों को उन अशिया खिदमात की पैदावार से रोकता है। तो कहने का मतलब सिंपली अब कानूनी अजारादारी यानी कानूनी तरीके से हासिल की गई अजारादारी को कानूनी अजारादारी कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में इसको यूं बयान कर सकते हैं कि वो अजारादारी जिसको कानून की पुष्पनाई हासिल हो, तो उसे हम कानूनी अजारादारी कहते हैं। जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तिजारती निशान है, तिजारती निशान है, हके कहने का नक्ल कहना चाहिए हक है,
कॉपीराइट है जिसको हम कहते हैं कॉपीराइट है वगैरह, ये तमाम जो है इसकी वजह से तजारती कहना चाहिए कानूनी अजारादारी हासिल होती है। जैसे इसकी बेहतर एग्जांपल जो यहाँ पर होगी अमूल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आमतौर से अमूल प्रोडक्ट्स को कानूनी अजारादारी हासिल है, तो कहने का मतलब ये है कि अमूल इसकी बेहतर एग्जांपल है। उसके बाद और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कानूनी अजारादारी। नंबर 4 लेंगे हम। नंबर 4 है हमारा यहाँ पर कुदरती अजारादारी। कुदरती हालात जैसे मौसम है, मौसम के अलावा बारिश है, खास महल वकूअ है, इसके अलावा की बिना पर जो अजारादारी कायम होती है, मौसमी हालात की बुनियाद पर जो अजारादारी कायम होती है। कुदरती हालात यानी कुदरत के अता करदा मौसम, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात के मौसम मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की पैदावार होती है। मखसूस मौसम दरकार होता है अशिया और खिदमात की पैदावार के लिए। मुख्तलिफ तरह की ज़मीनें मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह की ज़मीनों से मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की पैदावार होती है। उन अशिया और खिदमात को दूसरी जगह पर हम पैदा नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपली इसको कुदरती तौर पर कुदरती हालात जैसे मौसम है, बारिश है, खास महल वकूअ है, खास महल वकूअ की बिना पर जो अजारादारी कायम होती है उसे कुदरती अजारादारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं पंजाब का गेहूँ। पंजाब की ज़मीन जो है गेहूँ की पैदावार के लिए मौजूद और मुआफिक है, मुनासिब है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर पंजाब का मौसम जो है गेहूँ की पैदावार के लिए मुआफिक है, जिसकी वजह से पंजाब में बड़े पैमाने पर गेहूँ की पैदावार होती है। इसी तरह से आसाम ले लेंगे। आसाम जो है चाय की पैदावार में कुदरती अजारादारी रखता है, तो आसाम की ज़मीन उस तरह से, आसाम का मौसम उस तरह का है जो चाय की पैदावार के लिए मौजूद और मुनासिब है, जिसकी वजह से आसाम के अंदर चाय की पैदावार ज़्यादा होती है, दूसरे इलाकों में चाय की पैदावार नहीं होती उतने बड़े पैमाने पर, उनकी आला क्वालिटी की चाय की पैदावार नहीं होती। तो अजीज़ तलबा, ये जो है इसको हम कुदरती अजारादारी इस तरह से कायम होती है, इसे हम कुदरती अजारादारी कहते हैं। तो कुदरती अजारादारी के एग्जाम्पल जैसे आसाम है, आसाम में चाय की पैदावार है, पंजाब में गेहूं की पैदावार है, ये एक तरह की कुदरती अजारादारी है। तो अजीज तलबा, अब उसके बाद जो हम लेते हैं सादा अजारादारी, सिंपल मोनोपोली जिसको कहते हैं। सादा अजारादारी किसे कहा जाता है? सादा अजारादारी में पैदाकार या फरोशंदा अपनी पैदावार कि तमाम खरीदारों के लिए एक कीमत वसूल करता है। तो यहाँ पर सिंपल इस तरह से आप बयान करते हैं, सादा अजारादारी के अंदर आजिर जो है अपनी अशिया और खिदमात या अपनी पैदावार की तमाम सारिफिन से अपनी पैदावार की एक कीमत वसूल करता है।